السلام علیکم ناظرین کوشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل کھنڈونی کۄلگٲمِس منٛز چھُ آز تمہِ ساتہٕ اکھ بوٚڑ حٲدثہٕ ٹالنہٕ آمُت ییٚلہِ فورسز اہلکارو طرفہٕ علاقُک گیرٕ کرنہٕ آو فورسز ذرٲیو پٮ۪ٹھ چھُ وننہٕ آمُت زِ کھنڈونی کۄلگٲمِس منٛز چھُ زیر زٔمیٖن تھاونہٕ آمُت بارودی مواد تمہِ ساتہٕ ناکار بناونہٕ آمُت ییٚلہِ فورسز اہلکارن بارودی موادس حوالہٕ اطلاع موصوٗل سپٕز تہٕ اطلاع میلنس سۭتی چھُ علاقُک گیرٕ کٔرِتھ بارودی مواد ناکار بناونہٕ آمُت خارجہ وزارت طرف آز نئی دلی مز پریس کانفرنس ساز کرنا آمت یتھ دوران وزارتک سیکرٹرین موجودہ صورتحالس حوالہ کت کران وون زِ کئیہو ملکو طرف موجودہ صورتحالس دوران بھارتک مدد کرنک اعلان کرنا آمت تو کئیہو ملکو طرف امداد تہ بھارت واتناونہ آمت یُتھ زن بھارتس مز کورونا وائرسک مقابلہ کرنس مز سرکارس تو لوکن آسانی سپدِ A number of items that have come in. For example, the first flight that came in, I think many of you would have seen, was on the 27th of April, the night of 27th April from the UK, which brought in a number of oxygen concentrators, ventilators, and other equipment. Last night we had, a flight from Russia, actually two aircraft, special aircraft that came in from Russia that brought very large number of oxygen generating equipment. That means plants that generate oxygen. We had some 20 of those plants. We also had a lot of ventilators, bedside monitors. Russia also gave us Favipiravir, which is, in some senses, again, antiviral for COVID-19 treatment. We are also expecting tomorrow and over the next couple of days, 3 flights, special flights from the United States. You would have seen that President Biden spoke to Prime Minister. He offered extensive assistance. You would have seen the details of that assistance also from the United States. And of course, that assistance also went into areas like raw materials for our vaccine industry, etc. But the US is going to provide at an initial basis, at least 3 of these aircraft coming in with much needed oxygen equipment and concentrators, other areas that we need assistance. We will also have, we have a special cargo flight that is arriving tonight, I believe, from UAE, again with ventilators and carrying Favipiravir medicines. Just going back quickly to the US, I talked about the 3 flights that are coming in. The first one, which is tomorrow, 2 flights tomorrow, one in the morning and one in the afternoon, and on the 3rd of May we will have a 3rd flight. They will carry with them very large number of, as I mentioned to you, oxygen generating equipment. There will also be 2,000 oxygen concentrators, 500 oxygen cylinders, and I would say that capacity to provide 28 million liters of oxygen. Again, very much needed help both in terms of cylinders, in terms of actual oxygen, but also, most importantly, oxygen generating equipment that is very much needed. We also have a flight from Ireland coming in with 700 concentrators. France has also been very active. I think their flight will also be coming in on Saturday. As I said, over 40 countries, and these are not just developed countries. Our neighbors, Mauritius, Bangladesh, Bhutan, have all come forward to offer assistance in their in whichever capacity is possible, and we have got a lot of assistance also and commitments of assistance from different parts of the world, from Europe, from the Gulf region, UAE I mentioned, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia. देखिए हमने पूरी कोशिश की है कि जितने सप्लाई सोर्सेज हैं रेमडेसिविर के, चाहे वो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर जो गिलियड साइंसेस के पास हो या उनके जो ऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरर्स हो इजिप्ट में या इजराइल में या जहाँ भी हो, उनको हमने डायरेक्टली भी कांटेक्ट किया है. तो गिलियड साइंसेस ने तो कमिट किया है कि 4,50,000 डोज वो कंपनी के तरफ से ग्रेटिस बेसिस पे हमें देंगे. इसके अलावा हमने इजिप्ट को कांटेक्ट किया है जहाँ पे हम 4 लाख डोज और हमें उम्मीद है कि वहाँ से आ सकती है. हमें ये भी पता है कि बांग्लादेश में भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, उज़्बेकिस्तान में भी कुछ स्टॉक्स हैं, यूएई में भी कुछ स्टॉक्स हैं. तो जहाँ भी स्टॉक्स हैं हम उनके साथ संपर्क कर रहे हैं
اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ جلدی سے جلدی ہمارے دیش میں یہ اسٹاکس آ جائیں تاکہ یہ جو شارٹ ٹرم گیپ جو میں نے بتایا اس کو کور کر سکیں. RTO کشمیر سند طرف یہ گاڑی ہز دوبارہ رجسٹریشن حوالہ حکم نام جاری کرنے آمت یم پتہ ٹرانسپورٹرن مز حکم نامس خلاف ناراضگی لبنہ آئی تو معاملہ ہائی کورٹس مز ووت تت ہائی کورٹس مز سماعت سپدن پتہ ہائی کورٹ طرف حکم نام جاری کرنا آمت یتھ دوران RTO کشمیر سند حکم نام منسوخ کرنا آو یپر یہ حکم نام برو کن ین پتہ وادی ہند ٹرانسپورٹرن مز خوشی وچھنا آئی تت ون آمت گاڑی ہز دوبارہ رجسٹریشنس حوالہ جاری حکم نامو ست ٹرانسپورٹر مشکلن مز ہن. آج ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے ایک اہم اور تواریخی اور لینڈ مارک فیصلہ سنایا کیونکہ ہم نے جو چیلنج کیا ظہور احمد بٹ ورسز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر جو RTO نے سرکولر ایشو کیا تھا جاری کیا تھا جس میں بولا گیا تھا کہ جو نان جموں اینڈ کشمیر نمبر رجسٹرڈ جو وہیکلس ہیں ان کو سیز کیا گیا تھا ان کو بولا گیا تھا آپ کے لیے مینڈیٹری ہے یہاں رجسٹریشن کرنا. اس میں ہم نے ریٹ پیٹیشن دائر کی تھی. فائنل اس میں فاسٹ ٹریک بنیاد پر کورٹ میں سنوائی ہوئی تھی اور لاسٹ ہیئرنگ میں کمشنر ٹرانسپورٹ بھی آئے تھے ایڈوکیٹ جنرل اور RTO کشمیر بھی. لیکن آج اس میں کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے RTO کے اس سرکولر کو اس آرڈر کو کاش کیا کالا دم قرار دیا کاش کیا غیر قانونی مانا اور سب سے امپارٹنٹ چیز اور یہ بھی کورٹ نے بولا کہ اگر اب کسی بندے کو رجسٹریشن کرنی بھی ہوگی اگر کرنا بھی چاہے گا اگر اس کو 12 مہینوں سے زیادہ گاڑی یہاں رکھنی ہے تب جا کے اس کو کوئی ٹیکس نہیں ہوگا ڈبل ٹیکس نہیں ہوگا. عالمی وبا کورونا وائرسن یہ پورے دنیا نال ول تو درس ملکس سان جموں کشیر مز تہ امہ وبا ست ساس واد لوک متاثر تو درجن واد لوک از جان سپد تت جموں کشمیر انتظامیہ طرف ات وباس پہ روٹ لاگنس حوالہ کیا قدم تلنا آمت. یہ ہسپتالن مز آکسیجن دوا مہیا کرنے ست ست ویکسین مہم تو ٹیسٹنگ مہم مز تیزی ان آئی تت جموں کشمیر انتظامیہ طرف آز شام پہ جموں کشیر ہندین کہن ضلعن مز 64 گھنٹن ہند لاک ڈاؤنک اعلان کرنا آمت یت زن بریک دی چین مہم کامیاب بنوت لوکن ہز حفاظت یقینی بناونہ یی. یپر یہ فیصلہ ین پتہ عام لوکو طرف تہ انتظامیہ اتواس کرنک یقین دن آمت. جہاں تک اس کووڈ کا تعلق ہے جو گورنمنٹ نے ڈیسیجن کا لیا بہت اچھا ڈیسیجن لیا. چلو انہوں نے پہلے ہی لینا تھا لیکن دیر آئے درست آئے. لیکن آپ عام شہریوں کی ذمہ داری ہے بنتی ہے کہ اس پر عمل کریں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہ آج ایپیڈیمک چل رہا ہے یہ کتنا ڈینجرس ہے. لہٰذا لوگوں کی ذمہ داری بنتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ نے جو یہ فیصلہ لیا اس پر عمل کرے اور جس یہ بیماری ہے تاکہ ہم اس سے نجات پا سکیں. فائدہ تہ امہ سکن موسم جان تہ بچت زندگی پر اثر پی مگر ستن دکاندار باقی ڈپٹی چیف میڈیکل افسر اننت ناگن ضلع اننت ناگس حوالہ تفصیلات فراہم کران وونمت ضلع کن ہسپتالن مز موجودہ صورتحال نظر تل تھوت ضروری قدم تلنا آمت یت زن لوکن مشکل ویترن پین. کہ GMC اننت ناگ میں ہمارے اس وقت ایک پرانا 350 MPL کا آکسیجن پلانٹ جاری تھا. 1000 کا پلانٹ پچھلے دنوں لگا اور 2 پلانٹ 1000 کے آ رہے ہیں. ٹراما ہسپتال میں ہمیں کل یا پرسوں 1000 MPL پر لیٹر کا آکسیجن پلانٹ لگ رہا ہے. تو ہم نے ٹراما ہسپتال بجبہارا PIC آبخورا اور GMC اننت ناگ میں 70 بیڈ جو ہاسپٹل بیڈس رکھے ہیں جو آکسیجن پیشنٹ کے لیے ہمارے اس وقت 247 بیڈس اویلیبل ہیں جہاں ہم پیشنٹ کو آکسیجن دے سکتے ہیں. ممبر پارلیمنٹ تو نیشنل کانفرنس سینئر لیڈر محمد اکبر لونن موجودہ صورتحالس حوالہ کات کران وونمت لوکن پزِ ماہرین ہند مشورن پہ عمل کریں یت زن حفاظت یقینی بناونہ یی. یل زن سرکار چہ کامہ ہند تعریف کران تمو وون موجودہ صورتحالس مز یم قدم سرکار طرف تلنہ آئی تم قابل تعریف. جو عام لوگوں کو تشویش ہے کہ یہاں کورونا کی وجہ سے
वजह से लोग मर रहे हैं, ये बात सही है। अलबत्ता यहाँ अस्पतालों में, डिस्पेंसरियों में जिस तरह से काम किया जाता है वो ठीक ठाक है। जो वैक्सीन लगाया जाता है उसके लिए हुकूमत का जो रोल है वो काबिल तारीफ है। शुमाली कशीर हिंदिस पटन इलाके सहित वाबस्त लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज कायम ट्रामा हस्पतालस मज सोलर सिस्टम नस्ब करने आमद ताहम यह सिस्टम पतमो कईयों रेतों पे खराब तो हस्पताल इंतजामिया तरफ अमच शहर पर हवाल कह कदम तुलना आमुत यमकिन बिजली हज यह गई विज हस्पतालस मज मौजूद मरीजन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद सोलर सिस्टम शहर पर हवाल गसन कदम तुलने यन युत जन हस्पताल कामकार मजीद बेहतर सपदे। मैं यहाँ पटन ट्रामा हॉस्पिटल में एज इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा हूँ। यहाँ हमारे पास सोलर प्लांट है 20 kV का है, वो टोटल डिफेंग है, वो नहीं चल रहा है। हमें बहुत प्रॉब्लम होती है जब रात को पावर जाती है, 1 मिनट के लिए भी पूरा हॉस्पिटल शट डाउन होता है। लोग ज़बरदस्ती करते हैं। फिर ये क्या हुआ, क्योंकि जब तक हम जनरेटर चलाएंगे इसमें 5-7 मिनट तो लगते ही है। हमें हमारे पास ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोलर का। आपको क्या लगता है अगर ये नया लगाया था इस पे तो इतने कुछ ही टाइम के बाद ये खराब क्यों हुआ? ये पहले आया था, ये पुराने हॉस्पिटल में बैटरियाँ पड़ी वहाँ ही थी, फिर यहाँ लगाया उन्होंने, 1 साल कम से कम चला होगा, फिर फॉल्ट हो गया, नहीं चला। क्योंकि हमने ऑलरेडी उनको लेटर भी लिखी है, अपने डिपार्टमेंट को भी लिखी है, जकाड़ा एक कंपनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, उनको भी हमने लिख दिया है। फिर उन्होंने कहा हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे बहुत प्रॉब्लम होती है। जब तक हम जनरेटर चलाएंगे तब तक काफ़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ। तो क्या करने की जरूरत है? सोलर चाहिए, सोलर प्लांट चाहिए हॉस्पिटल में। अगर हॉस्पिटल 24/7 चलाना है तो पावर ज़रूरी है इसमें है, क्योंकि कोविड में भी पावर की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इससे इसका एक ही नतीजा है कि सोलर प्लांट हमें चाहिए और चलना चाहिए। वेलगाम हंदवार के सचलियारी इलाकस मज आज तम सात अकिस अयालस सठुई खुशी सपजमज येल तिमन कईयों वरियों पत लापता औलाद पुलिस तरफ बाजियाब करना आव। वन इलाकुक रोजन वोल नौजवान मोहम्मद अशरफ चौहान ये वरी 2010 मज पुर असरार पट लापता सपुद तो घर वालों तरफ पुलिस थानस मज अमे हवाले केस दर्ज करना आव। तब अल पल 10 वरियों पत यह नौजवान पुलिस तरफ इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऊंतपोर मज बाजियाब कर घर वालन हवाले करना आमुत, यह जन घर वालों तरफ खुशी हंद इजहार कर पुलिसुक शुक्रिया अदा कोर। तब मैं 15 साल का था, तो अभी 24 साल का। तब क्यों भागा था घर से? घर से भागा नहीं था, मैं स्कूल गया था। अच्छा। फिर किसी ने बोला था मुझे काम दिलाने का, ठीक। तो फिर उन्हीं के साथ 11 साल घर कांटेक्ट नहीं किया? घर की याद नहीं आई? जैसे याद तो आती थी, कोई जरिया नहीं था। अच्छा, कोई जरिया नहीं। आज कैसे मिला आप वहाँ से? पुलिस स्टेशन से फोन आया था जी, फिर मैं उधर गया। फिर कितनी खुशी कर रहा है? फिर 11 साल के बाद आपने अपने मम्मा पापा को देखा तो बहुत खुशी हो रही है। सबसे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की जिसमें आप ये सुचलियारी का रहने वाला है मोहम्मद अशरफ भट्ट सन ऑफ फजलुद्दीन भट्ट। ये दिसंबर 2010 से मिसिंग था, क्योंकि ये जो गांव है इसका जो कैचमेंट एरिया वो फॉरेस्ट लैंड है, वहाँ पर फॉरेस्ट के नज़दीक है। घर वालों ने ये सोच के ये छुप करके बैठे थे, क्योंकि शायद किसी जानवर वानवर ने कुछ खाया होगा तो ये मरा हुआ है। तो इससे 1-2 महीने 2.5 महीने पहले हमें कुछ ट्रेसेस मिले इस लड़के के कि ये ज़िंदा है। तो अपनी ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइज़ करके हम इस 2-2.5 महीने में काफ़ी मेहनत करके हमारे एसपी साहब ज़िला एसपी हंदवारा संदीप साहब की मदद से हमने इसको ट्रेस किया और पुलिस स्टेशन वेलगाम निकाल इसको बाजियाब किया श्रीनगर से, और आज की डेट में अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके इसको घर वालों के हवाले करेंगे। इसने तब से आज तक इसने काफ़ी जगहों पे काम किया है, जम्मू में भी काम किया है, श्रीनगर में भी काम किया है, और आज की डेट में इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा में जो वहाँ पर जो कंटेन चल रहा है वहाँ पर काम कर रहा था। उसका जो ओनर है उस होटल का, उसका एक दूसरा एसेट चल रहा है खानमू एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ पर वो उनका कुछ इंडस्ट्रियल एसेट चल रहा है, तो वहाँ पर भी रहता था। वहाँ पर
मिनी सेक्रेटरीट वरवलिस मज काम करने वाले मुलाजिमों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवई जिलस मज तमीर करने आमुद मिनी सेक्रेटरीट इमारत खस्ता हाली हज शिकार सपदन सत मुलाजिमन कईयाव रंगो मुश्किल वेतरन पेवान ताहम हुकामों तरफ अत मामलस कुन कह जोन दिन आमुत मुलाजिमों तो आम लोगों तरफ हुकामन मांग करने आमुत जे अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। मिनी सेक्रेटरीट की हालत ऐसे हैं कि सबसे पहले जो यहाँ वॉशरूम का बात है, आज मौसम चल रहा है, लोग रोज़ा रख के नमाज पढ़ने जाते हैं, मगर यहाँ बात ऐसी है कि यहाँ लोगों के घरों में पहले उनको जाना पड़ता है हाथ धोने के लिए, वुज़ू करने के लिए, तब जाके नमाज अदा हो सकती है। क्योंकि आप देख सकते हैं बाथरूमों को ताले चढ़े हुए हैं, बिल्कुल बंद हैं। पहले भी आप आए थे, हमने आपको बताया था, ये हमें तारें देखिए ये लटकी हुई हैं, ये हमें इधर हाल है मिनी सेक्रेटरीट का। यहाँ 8 डिस्ट्रिक्ट अफसर और 8 डिपार्टमेंट यहाँ काम कर रहे हैं, मगर यहाँ की खस्ता हालत ऐसी है कि किसी डिपार्टमेंट में भी वॉशरूम नहीं है। फीमेल स्टाफ भी यहाँ है और उनको भी लोगों के घरों में ना करके जाना पड़ता है। हम आपसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बेसिक चीज़ ये है कि ये PWD ही ये मेंटेन कर रहा है, लेकिन उनका इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं रहा है। वॉशरूम्स हैं वो काफ़ी खस्ता हालात में है, उनको रिनोवेशन की ज़रूरत है ताकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंफर्टेबल रहें विदाउट एनी रिस्क। असल में ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, पुराने अंदाज से बनाई गई थी और इसमें जो वेंटिलेशन का ज़्यादा फोकस नहीं रहा है, वाकई वो सही बात है। इसमें लाइटिंग की भी प्रॉब्लम है, तो लेकिन यही एक बार और गुजारिश करते हैं अपने जो हमारे डायनेमिक DC साहब आए हैं, उनसे यही गुजारिश है कि इसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। मौजूदा सूरत दौरान ये माहिरों तरफ समाजी दूरी पर जोर दिन तब मुख्तलिफ महकमों तरफ दफ्तरन मज अमे हवाले कदम तुलना आमद। जनूबी कशीर हिंदिस काजगुंड इलाकस मज कायम जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांचस मज जिम्मेदारों तरफ सारिफन वन आमद तिम गसन बैंकस मज दाखिल सपदनस दौरान समाजी दूरी हुंद खास ख्याल थवन युत जन पन तो दोयमन लूकन हिंद हिफाजत यकीनी बनावनी। पैसा खुश अगर बैंकस पर मैनेजर सा दूर दूर सोशल डिस्टेंस मई क्या हालत खराब वह बेमारी फैले जबरदस्त, इसलिए दूर दूर बचाओ तो बचाओ लुफ्त बचाए हमसे। बेचा यही कहता हूँ कि सबको इसमें ताउन देना चाहिए मैनेजर साहब को, क्योंकि सबके लिए अच्छा है, सोशल डिस्टेंस रखना जरूरी है। क्योंकि मैनेजर साहब ने भी यही कहा और हमने भी उनके साथ ताउन किया और लोग भी इनके साथ ताउन कर रहा है, क्योंकि ये बीमारी है, उससे खतरा है, हमें सावधान रहना चाहिए ताकि आगे हम हमारे बच्चे और हम बच सकें। जनूबी कशीर हिंदिस त्राल कस्बस में आज पुलिस तरफ तकरीब सांस करना आमुत यथ मज पुलिस जिम्मेदारों सिविल इंतजामी के अफसरों सिविल सोसाइटी हिंद मेंबरों तो इमाई मस्जिदों शिरकत कर। अत मौके पे कोरोना वायरस हवाले कथन दल दिन आव तक तकरीब मज मौजूद लूकन वन आमुत जिम गन पन्न पन्न महलन मज लॉकडाउनस हवाल लूकन जान फराहम कर युत जन अत वबास पे रोट लागन। जैसा कि आपको पता है कि कल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर हमें मिला, उसमें नेक्स्ट जो कल शाम से इनफैक्ट आज शाम से 84 आवर्स 3 दिन के लिए कंटिन्यूस लॉकडाउन रहेगा इन यूटी कश्मीर। तो हमने ये पुलिस पब्लिक मीटिंग इसीलिए की, हमने मौलवी साहिबान को लाया, हमने ट्रेडर्स फेडरेशन को लाया, हमने ज़ियादत शहरियों को लाया, हमने सिविल सोसाइटी को लाया, ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशन है उनको लाया, ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि कल से जो लॉकडाउन है उसके भी जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं प्रोटोकॉल्स है वो आप फॉलो करो, वो आप प्रोपिगेट करो, लोगों को बता दो कि ये जो रूल्स रेगुलेशन है ये आप अच्छी तरह से फॉलो करो। खासकर मौलवी हजरात को हमने इसीलिए बुलाया था आज कि वो मस्जिदों में भीड़ ना करें, लोगों को बता दें कि आपको घर में ही नमाज पढ़े तो ठीक रहेगा।
ضلع इंतजामिया अनंतनाग के अफसरों तरफ आज वैलू ककरनाग दौर कोर्मुत यथ दौरान मुतलिका अफसरों तरफ सड़की हज कुशादगी हज कामि हुंद जायजा हेत अत मौके पे लूको तरफ इंतजामी के अफसरन ब्रोह कन कया मसल बतलावन आय तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत सड़की हज कुशादगी मज पैद सपदम ठहर दूर करनस हवाल संजीद कदम तुलन आमुत युत जन कुशादगी हज काम मुकर्रर वक्तस मज मुकम्मल करनी। की हिदायतों पे मैं और मेरे साथ पीडीडी केपीडीसीएल और पीएचई टीम एक्सजीएन और एनएचआईडीसीएल जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है इस प्रोजेक्ट को, इसको 2 लेन से 4 लेन बनाने की जो अब कार्रवाई है वो स्टार्ट हुई है। तो उसमें कहीं कहीं जहाँ कुछ अड़चनें इनको आ रही थी, कोई डिफिकल्टीज थी, चाहे शिफ्टिंग ऑफ यूटिलिटीज़ को लेकर या चाहे लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड, तो उनके उससे मुतल्लिक आज ये दौरा हमने यहाँ पे किया और कोशिश यही है कि काम जो है पुरजोर तरीके से चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है। उम्मीद यही है कि इस पर आगे भी कार्रवाई होगी, क्योंकि वर्किंग सीज़न बहुत लिमिटेड रहता है, जैसा कि आप जानते हैं आगे विंटर सीजन आ जाता है, तो इसी वर्किंग सीज़न का बिल्कुल बखूबी तरीके से फ़ायदा उठा के हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस काम को अंजाम दें। ना मेरी अपील यही रहेगी लोगों से कि कॉम्पनसेशन जिनको पेड है, जिनने ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन का पैसा लिया है, वो खुद ब खुद अपनी जो इंक्रोचमेंट्स उनको हटाएं। अगर नहीं होगा तो हमारी तरफ से कार्रवाई होगी। द्रंग बदरकोट टंगमर्गी हिंदो लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे मुकामी सड़की हज शहर पर हवाल काम शुरू करना आई, ताहम छन काम मुकम्मल करना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत सड़की हज शहर पर हवा गसन संजीदा कदम तुलन yin युत जन आम लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। बदरकोट से द्रंग तक रोड आ रहा है, ये कुछ 4 किलोमीटर के करीब है, ठीक है। तो इसमें आधा किलोमीटर बीच में रह गया जो पेंडिंग है, बाकी तो पूरा रोड मैग्नेमाइज किया गया है। ये आधा किलोमीटर रह गया और काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो अब आपकी क्या डिमांड है? हमारी यही डिमांड है कि जो ये आधा किलोमीटर रह गया है इसमें इसको भी मैग्नेमाइज जल्द से जल्द किया जाए कि आम लोगों को राहत मिल जाए। और ये ऑलरेडी सियाहती मुकाम है, काफी मशहूर है, गुलमर्ग बी में भी आ रहा है। ये पड़ावल कांगन के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस मज कई वरी ब्रो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तहत सड़क तमीर करनस हवाल काम शुरू करना आई, ताहम छना आज ताम काम मुकम्मल करना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत सड़की हज काम मज गु सन युत जन सड़क तमीर सपदन सत आम लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। मैं बट मोहल्ला पड़ावल अनवर कॉलोनी का बाशिंदा हूँ। आज से 4 साल पहले PMGSY डिपार्टमेंट ने नेशनल हाईवे से लेके बट मोहल्ला तक रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया था, लेकिन आज 3 या 4 साल गुजरने के बाद ये काम नामुकम्मल है। मसला यूँ है कि इस जो रोड के ज़द में कुछ मकानात भी आए हैं, ज़मीनें भी चली गई है, हमारे मकान जो है इनके साथ कटिंग की गई है, तो इस वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें बारिशों के दौरान एहतिमाल रहता है कि हमारे मकान कहीं रोड पे न चले जाए। अगर जल्द से जल्द इस रोड पे काम शुरू न किया गया तो हमारे जानो माल को खतरा है। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच हमारे SDM साहब कंगन, तहसीलदार साहब कंगन और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच हमारी DC साहब जो हमारी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में बैठी है, उनसे हमारी गुजारिश है कि इस रोड के कंस्ट्रक्शन का काम जल्द से जल्द शुरू किया। ये हमारे PMGSY में 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर का रोड बनने जा रहा है, तो इसकी सारी एक्सरसाइज हुई है। इसमें मेन चीज़ अब है लोगों का एक्विजिशन, जो उनकी ज़मीन आती है इसमें, उसके लिए पैसे भी आए हैं। मैंने PMGSY वालों से बात की है, तो वो आखिरी मराह में उनकी कागजात है, तो वो कागज़ उनकी लैंड एक्विजिशन का फॉर्मेलिटी भी पूरी हो जाएगी। और मीनवाइल मैंने AEE अपने PMGSY वाले से उनसे बात करी हुई है, तो इंशाल्लाह इसका काम जल्द शुरू हो जाए। जनूबी कशीर हिंदिस पुलवाम कस्बस मज आज इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग अमले मज अन्ना आमत यथ दौरान सरकारी हुक्मनामन हज खिलाफ वर्जी करन वालन कईहन दुकानदारन खिलाफ कार्रवाई अमले मज अन्ना आई। यल जन जिम्मेदारों तरफ लूकन अपील करना आई तिम गन हुक्मनामस पर सख्ती सान अमल करन युत जन तिमन खिलाफ कार्रवाई अमले मज अन्नी। फूड वाले थे उनके
मुलाजिम थे, तो हमने पूरे मार्केट का ड्राइव किया। यहाँ पे देखा कि जो ऑड इवन रोस्टर जो पहले गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ है इवन ऑड रोस्टर के हिसाब से शॉप्स खुलेंगे, उस हिसाब से हमने एनफोर्स करवा दिया पूरे टाउन में। और लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, वो पहले से अवेयर है कि ये जो मोहल्ले की बीमारी है मुल्क में इसने बहुत तबाही मचा रखी है। तो हम चाहते हैं कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा इससे सेफ रहे। बाकी लॉकडाउन का सवाल है तो वो आज शाम 7 बजे से हो रहा है, कल से आज शाम से एनफोर्स कर रहे हैं। तो नाजरीन इस वक्त कोशर खबरनामा तुम रूजू वुचान खसूसी प्रोग्राम 5 का 5 में दी इजाज़त खुदा सवाल।